yesterday I completed a year at the helm of affairs at Capital Police, and this has been my way of presenting our work in whatever assignment I have been beforehand also. After every year, I try to project the work that we've done, and it is a white paper. White paper means we have done some good things which will be presented, and there are some limitations also. There are some places where we need to improve also. That also will be presented in the PPT. So it is not that we are here to say, we did so much good work and this and that. It is a bare analysis of whatever we've done, be it good or be it bad. But this is an attempt to just be transparent to the public, because ultimately it is the public for whom we are working for. So whatever we've worked for in this past year, be it good or be it bad, this is some sort of our performance review that we will be presenting. Also ऐसा कुछ नहीं है कि मैं यहाँ पे हूँ तो मेरी वजह से ये है और हमने ये किया है वो किया है, इसलिए just to let go of this idea कि because I am here to ये सब हो रहा है, we are going to have different officers presenting different parts of the presentation. जो भी इस एक साल में पिछले जुलाई से इस जुलाई में जो काम हुआ है, it is a testament to our teamwork. अच्छा काम हुआ है, बुरा काम हुआ है, जैसा भी है, we all stand together. I at the helm of affairs, my SDPO, my DYSP, my all OCs, and all other officers in different positions in the capital office also. So we all stand together, and this is just a very honest attempt at bringing out the facts to you. We'll be presenting figures also, facts also, in a very transparent manner, and we will leave it open to the citizens' judgment, so as to what we work for, how we perform, and what all other areas that we need to improve upon. Under this performance review, we'll be categorizing the review under 5 categories, which are crime detection, law and order, public outreach, welfare measures, new initiatives, challenges and way forward. And I'll be taking the presentation of crime detection part. Under the crime data of Itanagar Police, the crime heads are divided into 3 parts: heinous crime, non-heinous crime, and special acts. Under heinous crime, first of all, I would like to say that we have total number of registered, a total number of 528 cases, out of which we have worked out 443 cases, and our success rate is 85% in all the cases. So under heinous crime, the headings are murder, attempt to murder, dacoity, robbery, rape, kidnapping, abduction for ransom, kidnapping, abduction, and total cases registered are 35, and we have worked out all the cases. Under non-heinous crimes, we have these headings for molestation, eve-teasing, hurt, accident, theft, CBT, cheating, forgery, extortion, cruelty by husband and relatives, other IPC. The total number of cases registered in non-heinous crime are 409 cases under the review period, and we have solved 327 cases out of 409, and 82 cases are pending to be investigated. So I would honestly admit that we are lagging behind theft cases. We have still 82 cases pending with us, but we are focusing on that as well, and we'll be trying to solve it as soon as possible. Under special acts, we have registered a total cases of 84, and out of which we have solved 81 cases, and 3 are pending to be investigated. Under which the headings are POCSO Act, NDPS Act, APGP Act, PDPP Act, and other acts. Major achievements, good works done by Capital Police, which is divided into 3 categories: action against narcotics under Operation Dawn, major recoveries, sensational cases. Before starting the slide, I would say that Capital Police has always adopted deterrent measures to
prevent the drug menace. So the pictures, the figures are testament to our efforts. Total number of cases registered under NDPS Act were 34 under the review period of 1 year. Number of arrests have been 44 persons. Total seizure has been 2.167 kg heroin, 18.519 kg cannabis ganja. I would like to add that the 2.167 kg is worth heroin is worth 3 crores. Last year, out of which 443 cases has been solved. Rest are under investigation. That brings our solving percentage to around 85. Now I'd like to take you to the major sensational cases that we worked out. पहला केस मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो है अरेस्ट ऑफ मुजीबुर रहमान। मुजीबुर रहमान ने आकाशदीप में दो बहनों का रेप और मर्डर करके उसे अरेस्ट किया गया था, फिर वो डिस्ट्रिक्ट जेल से भाग गया था। हमें पता चला हमें उसके लोकेशन के बारे में पता चला और उसके बाद हमने एक स्पेशल टीम अंडर द लीडरशिप ऑफ एसडीपीओ ईटानगर बनाई और इस टीम ने मुजीबुर रहमान को ट्रेस किया आसाम से ट्रेस करने के बाद इसको ल्यूर किया ईटानगर में और इसको अरेस्ट किया जुलान से। 12 साल से जो कैदी भागा हुआ था, ईटानगर पुलिस ने 12 साल से जो कैदी भागा हुआ था रेप और मर्डर का दोषी, उसे ईटानगर पुलिस ने पकड़ा है। मैं आप एक मणिपुर बेस्ड जो ड्रग ट्रैफिकिंग रिंग है उसके बारे में बताना चाहूंगा। ईटानगर पुलिस को यह पता चला कि ईटानगर में मणिपुर से भी ड्रग्स आ रहा है। उन्होंने जो मणिपुर बेस्ड सप्लायर है उसे इंट्रैप किया। मणिपुर बेस्ड सप्लायर को इंट्रैप करने के बाद उसको अरेस्ट करके करीबन 350 ग्राम्स अराउंड 350 ग्राम्स हेरोइन उसके पोजीशन से सीज किया, उसको अरेस्ट किया। ये जो 350 ग्राम हेरोइन है उसका मार्केट वैल्यू अराउंड 35 लाख है। इससे मणिपुर बेस्ड जो ड्रग सिंडिकेट है उसको ईटानगर पुलिस अंडर द लीडरशिप ऑफ एसडीपीओ ईटानगर एंड ओसीपीएस ईटानगर वर एबल टू कर्व डाउन। नाउ आई लाइक टू ब्रिंग योर अटेंशन टू द धेमाजी बेस्ड सिंडिकेट, ड्रग सिंडिकेट जिसको ईटानगर पुलिस ने ब्रेक डाउन किया था। हमें पता चला कि नाहरलगन के लिए कार्गो जा रहा है ड्रग्स लेके। ईटानगर पुलिस अंडर द लीडरशिप ऑफ एसडीपीओ एंड ओसी उन्होंने उस कार्गो को इंटरसेप्ट किया और करीबन 120 ग्राम हेरोइन उसके पोजीशन से सीज किया, उस आदमी को अरेस्ट किया। इससे जो धेमाजी बेस्ड जो सिंडिकेट है, ड्रग सिंडिकेट है, उसको हमने तोड़ा। पहले मैंने आपको बताया हमने मणिपुर सिंडिकेट को तोड़ा, फिर धेमाजी सिंडिकेट को तोड़ा। अब मैं आपका ध्यान होलंगी सिंडिकेट की तरफ लाना चाहता हूँ। हम सबको ये ओपन सीक्रेट है कि ईटानगर में जो ड्रग्स आता है उसका काफी हिस्सा होलंगी से भी आता है। तो होलंगी बेस्ड जो ड्रग सप्लायर था उसको चिंपू ओसी ने आइडेंटिफाई किया और चिंपू ओसी की टीम ने उस सप्लायर को अरेस्ट किया। उनके पोजीशन से करीबन 150 ग्राम अराउंड 15 लाख वर्थ ऑफ हेरोइन सीज किया। एक और केस है जो काफी इंटरेस्टिंग केस है, चीटिंग केस था, 2 करोड़ की चीटिंग केस। चिंपू बेस्ड एक बिजनेसमैन को गुवाहाटी बेस्ड एक गैंग ने टेंडर देने के बहाने उनसे पैसे ले लिए। अब करीबन 2 करोड़ रुपए से ले लिए और उनसे 1 करोड़ लेके वो भाग गए थे। जब चिंपू ओसी इंस्पेक्टर नीरज निशांत की टीम को पता चला कि ये एक्यूज भागा हुआ है, उन्होंने इस एक्यूज को फॉलो किया, आसाम से इसका अरेस्ट किया और अराउंड 92 लाख रिकवर कराया और अभी ये केस अंडर ट्रायल है और बाकी पैसे भी रिकवर होने के प्रोसेस में है। अब मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूं जो वो मर्डर केस है। आप लोगों को अगर याद हो तो विवेक विहार एरिया में एक मर्डर हुआ था जिसमें एक मिठाई दुकान में काम करने वाले आदमी ने अपने कलीग को मार के डंप करके वो बंगाल भाग गया था। जब हमें ये पता चला हमने उसे वेस्ट बंगाल में जाके फॉलो किया, उस आदमी को अरेस्ट किया है और हम आज ये इंश्योर कर रहे हैं सिर्फ उसका अरेस्ट नहीं कि हम उसका कन्विक्शन भी इंश्योर कराएंगे। अब मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगा कैपिटल पुलिस ने जो बाइक थेफ्ट का रैकेट को बस्ट किया उसके ऊपर। हम सबको पता है कि बाइक थेफ्ट, खासकर एमवी थेफ्ट, बाइक थेफ्ट एक बहुत बड़ा इश्यू है जो ईटानगर के लोग सफर करते हैं। ईटानगर पुलिस टीम अंडर द लीडरशिप ऑफ इंस्पेक्टर निशान ने एक गैंग को आइडेंटिफाई किया जो 2019 से बाइक चोरियां कर रही है। इस गैंग को आइडेंटिफाई किया, अरेस्ट किया और करीबन 53 बाइक्स जो ईटानगर से 2019 से अभी तक चोरी हुई है उनको रिकवर करके उनके राइटफुल ऑनर तक पहुंचाए। जैसा कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग रिंग है उसके बारे में आप सब अवगत हैं। मैं एक बार आप लोगों का मेमोरी थोड़ा जॉट डाउन करा देता हूं। हमने 3 ट्रैफिकिंग रिंग को बस्ट किया है इस पास्ट ईयर में। सबसे पहला जो ट्रैफिकिंग रिंग था वो ये था कि 2 बच्चियां यहां से गायब हो गई थी। एक पुलिस वाले का भी इन्वॉल्वमेंट था और गुवाहाटी के पास से वो रिकवर हुई थी। हमने उन 2 बच्चियों को रिकवर किया है, जितने भी एक्यूज है उनको अरेस्ट किया है
चार्जशीट कर दिया है इस केस को, अभी ये केस अंडर ट्रायल है। दूसरा जो नेटवर्क, जो चिंपू का जो बहुत फेमस नेटवर्क है, इसमें 28 लोग अरेस्ट हुए हैं। आप सबको पता है कि आसाम से लड़कियां लाई जा रही थी, छोटी बच्चियों को, उनको ट्रैफिक करके लाया जा रहा था, प्रोस्टिट्यूशन रिंग में उनको शामिल किया जा रहा था और एसेलियंट्स उनको सेक्सुअली असॉल्ट कर रहे थे। हमने उन 5 बच्चियों को रिकवर किया है, हमने जितने भी पिम्स है सबको अरेस्ट किया है और हम सेक्सुअल एसेलियंट्स को भी हमने अरेस्ट किया है। मुझे ये बताते हुए गर्व है, इवन टुडे 2 more arrests have happened in this case। जो 2 लोग भागे हुए थे उनको भी आज वुमेन पुलिस टीम ने अरेस्ट किया है। अब मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूँ, दिल्ली बेस्ड जो नेटवर्क था, हमें पता चला था कि 2 बच्चियों को जो घर से गायब है उनको दिल्ली ट्रैफिक किया जा रहा है। हमने बच्चियों को रिकवर किया। हमें पता चला कि दिल्ली में उनको प्रोस्टिट्यूशन, अरुणाचल की बच्चियों को प्रोस्टिट्यूशन रैकेट में घुसाया जा रहा है। हमने उन दोनों बच्चियों को रिकवर किया। जो यहाँ में जो लोग थे जो उनको ट्रैफिक कर रहे थे उनको अरेस्ट किया और दिल्ली जाके जो प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चलाने वाला जो किंग पिन था जीत खत्री, उसे अरेस्ट किया और कस्टमर्स को अरेस्ट किया। तो पिछले 1 साल में कैपिटल पुलिस ने 3 ह्यूमन ट्रैफिकिंग और प्रोस्टिट्यूशन रिंग को बस्ट किया है और करीबन 10 बच्चियों को रिकवर किया है। अब जो क्राइम डिटेक्शन पार्ट है आज का प्रेजेंटेशन का, वो खत्म हो गया। अब मैं आपको लॉ एंड ऑर्डर पार्ट में लेके आना चाहता हूँ। जो लॉ एंड ऑर्डर पार्ट है उसको हमने 3 भाग में डिवाइड किया है। प्रिवेंटिव एक्शन जो ILP का होता है, 107 का एक्शन है वो, लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट और कम्युनिटी पेट्रोल। मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी महसूस हो रही है कि ईटानगर का प्रिवेंटिव एक्शंस में 107 पीस का बाइंड डाउन, चाहे ILP का ऊपर एक्शन हो, वो वन ऑफ द बेस्ट है इन स्टेट। आप देख सकते हैं हमने 107 बॉन्ड फॉर गुड बिहेवियर 610 लोगों से लिया है और हमने ILP में करीबन 900 लोगों को एक्सटर्न आउट किया है। ये फिगर इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ईटानगर के पास अपना कोई चेक गेट नहीं है। हम बकायदा हम गली गली जाके ILP चेक करके लोगों को एक्सटर्न आउट करा रहे हैं, बिना जो ILP वायलेटर्स हैं उनको एक्सटर्न आउट करा रहे हैं। अब मैं आपका लाना चाहता हूँ लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट पे, जिसे हम बंदोबस्त ड्यूटी कहते हैं हमारी लैंग्वेज में। आपको पता है ईटानगर इज द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश और सारा जितना भी पॉलिटिकल मूवमेंट है, जितना जो मेजर जितने भी मूवमेंट्स है, VVIP मूवमेंट्स ईटानगर से होता है। आपको मैं एक डाटा की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि एवरी 36 आवर्स ईटानगर पुलिस इज बिजी इन एवरी 36 आवर्स ईटानगर पुलिस इज बिजी इन वन लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट। हर 36 घंटे में एक अरेंजमेंट होता रहता है। हमने 43 VVIP अरेंजमेंट देखे हैं इस 1 साल में। 196 हमने सिक्योरिटी अरेंजमेंट देखे, इसमें एग्जाम ड्यूटी, रिलीजियस प्रोसेशन, ये सब है। और करीबन हमने 4 लाख के आसपास क्राउड प्रोसेस किया है। अब मैं आपका जो हमारा एक नया इनिशिएटिव है कम्युनिटी पेट्रोल, मैं उसकी तरफ जाना चाहता हूँ। SP साहब जब पिछली बार करीबन 2 हफ्ता पहले जब फेसबुक लाइव पे गए थे, तब बहुत लोगों ने ये बात उठाया कि IG पार्क और इन एरियाज में जो है वो IG पार्क और कुछ चुनिंदा एरियाज में प्रॉब्लम है, तकलीफ होता है। तो हमने कम्युनिटी पेट्रोल का इनिशिएटिव किया, जिसमें पुलिस वाले कम्युनिटी मेंबर्स के साथ जो भी सेंसिटिव एरियाज है उनको पेट्रोल करते हैं। जो पहली बार जो बच्चे मिलते हैं उनको हम समझाते हैं, उनके पेरेंट्स के नोटिस में लाते हैं और उनको दोबारा ऐसी हरकतें नहीं करने को कहते हैं। ये कम्युनिटी पेट्रोल जो इनिशिएटिव है वो काफी सक्सेसफुल है, ये पिछले 14 दिन में हमने देखा है। और जो इंसिडेंट्स हैं IG पार्क और बाकी एरिया, बात वाले एरिया से, वहाँ काफी कम हुए। मैं आप सबको खोया पाया अभियान के बारे में, अगर मीडिया फ्रेटर्निटी को बहुत फ्रेंड्स को बहुत पता ही होगा, मैं फिर भी थोड़ा बता देना चाहूँगा। हमने खोया पाया अभियान लॉन्च किया है, जिसमें अगर आपका फ़ोन गुम गया है तो आप कंसर्न थाना ईटानगर, नीति विहार, चिंपू, वहाँ आप रिपोर्ट करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि आपका फ़ोन आपको वापस मिले। इस अभियान के तहत हमने पिछले 1 साल में करीबन 300 फ़ोन, अराउंड 300 फ़ोन्स हमने रिकवर किए हैं और उनके राइटफुल ऑनर तक रिस्टोर किए हैं। मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा, खोया पाया अभियान के तहत हमने पिछले 1 साल में अराउंड 300 फ़ोन्स रिकवर किए हैं और उनके राइटफुल ऑनर तक उनको हमने रेस्टिट्यूट किया। अब हमारा जो पब्लिक अवेयरनेस या आउटरीच के अलावा हमने कुछ नए इनिशिएटिव्स लाए हैं, मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। मैं सबसे पहले आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा जो हमारा क्राउन ज्वेल है ई सर्विसेज, उसके तरफ। ई सर्विसेज एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप जो सर्टिफिकेट होता है वो आप अपने घर से हासिल कर सकते हैं, 1 दिन में हासिल कर सकते हैं। सर्टिफिकेट जैसे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, टेनेंट वेरिफिकेशन, डोमेस्टिक हेल्थ वेरिफिकेशन, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और लॉस सर्टिफिकेट आप अप्लाई कर सकते हैं, अपने घर से आपको मिलेगा। आपको कोई ऑफिस जाने की जरूरत नहीं, कोई थाने में रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं।
मैं ये बताते हुए मुझे और भी गर्व है कि इस ई सर्विसेज सिस्टम को स्कॉच अवार्ड, मुझे पूरी कंट्री लेवल पे जो अवार्ड है स्कॉच अवार्ड भी मिल चुका है फॉर यूजिंग टेक्नोलॉजी इन डिलीवरिंग सर्विसेज। तो हमने क्या करा, हमारे ये ई सर्विसेज का पोर्टल आप देख सकते हैं, फर्स्ट जो स्क्रीनशॉट लगा हुआ है वो हमारे ई सर्विसेज का पोर्टल है, वहां पे हम लॉगिन करते हैं। दिस इज द सेम लिंक, इस सेम लिंक से ही हम जाते हैं, आप भी एक पब्लिक भी उसी से घुसेगा, हम भी उसी से लॉगिन करके हम यूज करते हैं, ठीक है। हमारा क्रेडेंशियल डिफरेंट होता है। देन हमारा ये इंटरफेस है, ये हमारा इंटरफेस सर्विसेज प्लस का ऐसे दिखता है, इसमें हम सारे स्टेटस वगैरह देख सकते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि जब हम यहाँ पे घुसते हैं तो हमने अब इसमें डिलीवरी की जो मैकेनिज्म है उस पे ये करा कि हमने वो आईसीजेस को ले आए। आईसीजेस को ले आने से क्या हुआ कि हम जो भी डाटा, अगर किसी क्रिमिनल का नाम, हम फादर का नाम अगर डाल के, बहुत तरीके से हम सर्च कर सकते हैं, उस पे एफआईआर नंबर से सर्च कर सकते हैं, थाना वाइज सर्च कर सकते हैं, स्टेट वाइज सर्च कर सकते हैं। तो जब हम किसी अक्यूज का नाम या जो क्रिमिनल है उसका नाम हम डाल के, फादर का नाम डालते हैं, तो उससे क्या होता है कि हम उसका जितना भी एफआईआर है वो देख सकते हैं। पहले क्या होता था, कुरुंकुमे में कोई क्राइम करता है वो कैपिटल में आके एनओसी लेकर टेंडर ले लेता था, अब वो ऐसा नहीं कर सकता। अगर उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड कुरुंकुमे में निकले, केरला में निकले या कहीं भी निकले, हम उसको एनओसी नहीं देते। पहले ये हम सक्षम नहीं थे, हम नहीं कर पाते थे। जब से इंटीग्रेशन हुआ है तो हम ऑल इंडिया का क्राइम देख सकते हैं। तो आफ्टर लॉगिन हम वो स्टेट को हम लाते हैं, वो आईसीजेस का इंटरफेस आप देख सकते हो, हम उस पे लॉगिन करते हैं और अपना जो भी अपना बिकॉज ऑफ द सेंसिटिविटी ऑफ द वेब पोर्टल, मैंने डाला नहीं स्क्रीनशॉट, तो वो क्या होता है कि उस पे हम लॉगिन करके वो क्रिमिनल रिकॉर्ड देखते हैं और उस हिसाब से हम इमीडिएटली देते हैं। जो चीज 14 दिन लगता था वो 1 दिन या 1 दिन से कम लगता है। किसी को आने की जरूरत नहीं है, आपके ईमेल आईडी में वो सर्विसेज मिल जाएगा घर पे ही, घर से अप्लाई करिए और घर से सर्टिफिकेट मिले। जो आते हैं ऑफिस में क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं है तो वो जानने के लिए आते हैं कि कैसे क्या हो रहा है, जल्दी कर दीजिए, बट उनको हम बताते हैं कि इमीडिएटली हो चुका है। कई बार हमारे पास एप्लीकेंट आते हैं उनका ऑलरेडी डिलीवरी हो चुका होता है, उनको पता ही नहीं होता ईमेल, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो साइबर से जाके भरवाते हैं, बट हम उनको रिकमेंड करते हैं कि अपना ही साइबर, अपना ही ईमेल आईडी उस पे डाला करें। एंड दिस न्यू क्रिमिनल लॉज आर, अब ये हमें जो कॉलोनियल एरा के जो हमारे लॉज थे उससे बाहर निकल के जो नया भारत है उसका कानून है। उस कानून के लिए जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, जो इस कानून को फील्ड पे इस कानून को इंप्लीमेंट कराएंगे, उन पुलिस ऑफिसर्स को ट्रेन करने के लिए कैपिटल पुलिस ने एक हैंडबुक बनाया है जिसका नाम है अन्वेषण संग्रह। ये नए कानून के बारे में पुलिस ऑफिसर्स को बताता है, नए कानून में पब्लिक को क्या क्या फैसिलिटीज हम प्रोवाइड कर सकते हैं उसके बारे में भी बताता है, और जो जनरल प्रोसीजर है इन्वेस्टिगेशन का उसको बेहतर बनाने के तरीका बताता है। हमारा जो इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम है उसमें हमने ये नोटिस किया कि वुमेन सेंट्रिक कुछ नहीं है। अगर औरतों का कंप्लेन होता है तो दे आर मच मोर कंफर्टेबल शेयरिंग इट विद वुमेन पुलिस पर्सनल। तो एक 24/7 रिस्पांस सिस्टम फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन इन फॉर्म ऑफ पिंक पीसीआर इज देयर, जो जनरली वो सारे कंप्लेंट्स भी लेता है बट इट स्पेशलाइजेस इन कंप्लेंट्स ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। अब मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगा ये जो पुलिस ऑफिशियल ऑफ द मंथ जो हमारा इनिशिएटिव है उसके तरफ। इन ऑर्डर टू एनकरेज द पुलिस फोर्स दैट इज वर्किंग ऑन द फील्ड, दिस इज द इनिशिएटिव दैट वी हैव लॉन्च्ड। ये दिसंबर 2023 से इनिशिएटिव चल रहा है। मैं एक बार फटाफट से आपको इन सारे लोगों से परिचित कराना चाहूंगा। Inspector Tixi Yangfo is the OC of Itanagar Police Station. He is a 2002 batch sub-inspector and one of the most prominent police officers of the state. His work, especially in combating drug trade in the state, has been recommended across all quarters. संदीप यादव जो है, मैंने जो खोया पाया अभियान के बारे में आपको बताया था, खोया पाया अभियान को शुरुआत करने वाला लड़का जो है वो संदीप यादव है, who has done exceptional work। और इसने ये नाहरलगन में था, अफ्रीकानगर में था, he has recovered around 500 cell phones in his career। फिर मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगा तामो बखंग साहब के साथ। ये सब इंस्पेक्टर है 2022 बैच के, नेविस के प्रोडक्ट है और अभी चिंपू थाने में पोस्टेड है। तामो's स्पेशलिटी इज थेफ्ट एंड बर्गलरी, और मुझे ये बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि तामो हैज सॉल्व वन ऑफ द मोस्ट सेंसेशनल केसेस ऑफ थेफ्ट। करीबन 2 करोड़ की चोरी का, लोकल ज्वेलरी की चोरी का केस तामो बखंग साहब ने सॉल्व किया था, जिसके कारण उन्हें ये जो फरवरी महीने में पुलिस ऑफिसर ऑफ द मंथ मिला था। कांस्टेबल राजू भगत इज आवर, जो मैंने आपको कहा था कि एवरी 36 आवर्स में कैपिटल पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट देखना पड़ता है। ही इज द मेन रिस्पॉन्सिबल कि वो सारे फोर्स को यहाँ से वहां डिप्लॉयमेंट बनाना, फोर्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराना का काम राजू भगत साहब करते हैं। अप्रैल के महीने में हमारा 3-way टाई था। हमारे एमपीओ साहब CHM ईटानगर एंड CHM WPS, MPO is responsible for movement of troops,
CHM Itanagar is responsible for the functioning of Itanagar police station and CHM WPS Sunita madam is responsible for the functioning of women police station Itanagar. तो उनको उनके काम के लिए हमने पुलिस ऑफिसर ऑफ द मंथ बताया था। मई के महीने में कांस्टेबल मोली रियांग है। मोली रियांग नीति विहार थाने में पोस्टेड है एंड मोली रियांग इज अ ऑलराउंडर। वो क्राइम का काम भी करते हैं, फंक्शनिंग भी कराते हैं, वो ड्रग ऑपरेशन एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का भी हिस्सा है। उनका ये मल्टी फैसिलिटेड जो एबिलिटीज है उनके लिए उनको मोली रियांग साहब को हमने पुलिस ऑफिसर ऑफ द मंथ में डिक्लेयर किया था। जून महीने का पुलिस ऑफिसर ऑफ द मंथ हमारे पादम पादी साहब थे। पादम पादी साहब इज अगेन ए वेरी एक्सेप्शनल पुलिस ऑफिसर, बट उनकी 3 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला, since joining Itanagar PS he has arrested around 20 drug peddlers, seizing drugs worth lakhs. He has arrested a cheat from Rajasthan after almost a year long manhunt. He has arrested a person who has cheated people of Arunachal of around 10 crores from Rajasthan. And एक डिग्निटरी का जो इंस्टाग्राम पेज को यूज करके पैसा मांगने का जो करते हैं, उसका केस को भी उन्होंने क्रैक किया था गुजरात जाके। तो इसीलिए पादम पादी साहब को हमने जून महीने का पुलिस ऑफिसर ऑफ द मंथ डिक्लेयर किया था।